Welcome everyone. How are you? Today we are going to study chapter 6 Square and Square Roots exercise 6.2. Question number 1. Find the square of the following numbers. The following numbers. First part is 32, second 35, third is 86, fourth part is 93, and fifth 71, sixth 46. We have to find the square of these numbers. So let us take first part, that is square of 32. We have to find the square of 32. That means we have to multiply 32 two times. One method is to find the square of 32. 32 multiply 32, this will give the square of 32. But this method is टाइम कंज्यूमिंग, सो वी कैन अडोप्ट वन मोर मेथड. हम इस मेथड की बजाय एक और मेथड कर सकते हैं. उसमें हम क्या करेंगे, 32 को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे. 30 + 2, दिस इज 32. 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. अब हमें जब स्प्लिट करना है इसको, तो हमें ये सोचना है कि हमें स्प्लिट किस तरह से करना है, क्योंकि 32 को तो हम कई तरीक़ों से स्प्लिट कर सकते हैं. 28 + 4, 29 + 3 और 31 + 1. तो हमने 30 + 2 ही क्यों किया? हमने 30 + 2 इसलिए किया क्योंकि हमें एक नंबर ऐसा लेना होता है जिसमें ज़ीरोज़ की पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि ज़ीरो वाले नंबर का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ हम 1 ले सकते हैं, 1 0 वाला नंबर ले सकते हैं, एंड दैट इज़ 32. सो वी विल बी स्प्लिटिंग 32 into 30 + 2. नाउ वी हैव लर्नड अनदर आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square + b square + 2ab. Here a is equal to 30 and b is equal to 2. Now a plus b is 30 plus 2 whole square. 30 plus 2 whole square, that will be equal to a square. A is 30, so 30 square, plus b. B is 2, so this is 2 square, plus 2 into a. What is a? 30. And what is b? That is 2. Now simply we have to solve this expression, and by solving this expression, this is very easy to find 30 into 30. 3 3s are 9 and 2 zeros. 3 3s are 3 2 times लिया, 9 मल्टीप्लाई करके 9 आया, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 zeros आएंगे, तो 900 हो गया, प्लस 2 2s are 4, प्लस 30 2s are 3 2s are 6 and 0, तो कितना हो गया 60. एंड 60 × 2, और इस 60 को आप यहीं पर ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, 120 आ जाता. अदरवाइज़ हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 900 + 4 + 126 2s are 12 and 1 0. नाउ सिंपली वी हैव टू ऐड दिस थ्री नंबर्स, 900, 4 and 120. So this will be 4 and then 2 and then 1020 is the square of 32. Now this 1024 we have got by adding these three numbers. So this is the answer, and in this way we can find the square of many two-digit numbers. And in the same way we can do this second part, 35, that is 30 plus 5. We can split it into 30 plus 5. This can be split it into 80 plus 6. This 93 can be split it into 90 plus 3, and 70 can be split it into 70 plus 1, and this 46
this will be 40 plus 6, and after that, after splitting, we can find the square of these numbers by using this identity a square plus b square plus 2ab, that will be equal to a plus b whole square. Question number 2. In question number 2, the statement is write a Pythagorean triplet whose one member is 1 part is 6. So let us do first part, and in the same way we can do the other parts. First of all, we should know what is Pythagorean triplet. Pythagorean triplet is a set of 3 numbers. 3 ऐसे नंबर्स का सेट होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसके अंदर अगर हम 2 छोटे वाले नंबर्स का स्क्वायर करें और फिर उनको ऐड करें, तो जो तीसरा नंबर है जो सबसे बड़ा है उसका भी स्क्वायर करें, तो उन दोनों के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के सम के स्क्वायर के इक्वल आए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, वी कैन टेक suppose first number is a, second is b, and third is c, and c is the greatest of these 3 numbers. तो क्या होगा कि अगर हम a स्क्वायर करें और b स्क्वायर करें और उनको ऐड करें और साथ में हम c स्क्वायर करें, और वो जो c स्क्वायर होगा वो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए. तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? दीज विल बी द मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो now we have, in this first part we have given one member of Pythagorean triplet. The rule is that we will be supposing 3 numbers as 2m, m square minus 1 and m square plus 1. Let these are the 3 numbers in Pythagorean triplet. तो फर्स्ट नंबर जो हमें 6 दिया हुआ है, let the first number is 6 and that is equal, हमने इस यहाँ पर फर्स्ट नंबर 2m सपोज किया है, तो फर्स्ट नंबर 2m is equal to 6. From here we can find the value of m. यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ 2 इंटू m है, 2 इंटू एम, दैट मीन्स 2m से मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हमें m की वैल्यू निकालनी होती है तो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इधर जाके डिवाइड हो जाता है. तो 6/2, तो m की वैल्यू कितनी हुई? 3. दैट मीन्स इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट मेंबर कितना है हमारे पास? 6. फर्स्ट मेंबर अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है तो भी 6 ही आएगा, बिकॉज फर्स्ट मेंबर हमने लिया 2m और 2m जो है m जो है उसमें 3 है, तो 2 × 3 वो कितना होगा? 6. तो दिस इज़ द फर्स्ट नंबर, ये तो हमें गिवन ही था. नाउ वी हैव टू फाइंड अदर 2 नंबर्स. सेकेंड नंबर हमारा क्या है? दैट इज़ सेकेंड नंबर इज़ m square minus 1. So we will be putting this, the value of m, not 2m, value of m from here in this expression. तो put m is equal to 3. तो अगर इसमें हम m की जगह 3 पुट करेंगे, बट m का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इज़ 9 एंड -1 कितना हो गया ये? दैट विल बी 8. तो इसका मतलब जो सेकेंड नंबर हमने सपोज किया था m² -1, वो हमारे पास कितना आया? 8. दैट मीन्स दिस इज़ द सेकेंड मेंबर. फर्स्ट मेंबर क्या था हमारा? 6. सेकेंड मेंबर इज़ 8. सेकेंड मेंबर ऑफ किसका? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का. नाउ थर्ड मेंबर, व्हाट इज़ थर्ड मेंबर? थर्ड मेंबर इज़ m² + 1. हमने यहाँ पर m² + 1 सपोज किया था, तो m² + 1. अगेन वी विल बी पुट
m इज इक्वल टू 3, m इसके लिए भी 3 रहेगा, m की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. सो m स्क्वेयर दैट इज़ 3 स्क्वेयर प्लस 1, 9 प्लस 1, 9 इज स्क्वेयर ऑफ 3, क्योंकि 3 स्क्वेयर हमने किया है यहाँ पर, एंड दैट इज इक्वल टू 10. नाउ द मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, that is 6, 8 and 10. 2m was 6, m square minus 1 was 8, and m square plus 1 was 10. So these numbers are